So where were we? Last we watched episode 2 together. Yes. And उसके बाद क्या क्या हो चुका है आप बताइए. This is N. And this is M. Okay, so अभी तक के ये हुआ है that Fatima, she wanted to get married to Umair. Umair was like, I'm not going to get married to her because she is very conservative. And then Umair, उनको एकदम से ख्याल आया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. उमैर को फातिमा से मोहब्बत हो गई, मगर उमैर को कैसे मोहब्बत हो सकती है फातिमा से? He argues with his own brain for like 2 minutes. उमैर को फातिमा से मोहब्बत हो गई है? हाँ, हो गई है शायद. लेकिन कैसे हो गई है? कब हो गई है? उमैर को कोई पसंद आ सकता है? हाँ, शायद उमैर फातिमा को पसंद कर चुका है. And then Fatma was like, I'm not going to get married to you. And then he accused her of having a relationship. He basically maligned her character in front of everyone, and he said that she's having an affair with Mudahir, which is when she slapped him. शर्मा रहे, लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों. ये keep looking at Mutahir, guys. उनका jumping. You saw how it tripped me, guys. कूद के इधर उधर पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे 3 लोगों में लड़के. And I love it because it's so genuine. Like I think the director just said, just push him and see where the scene goes, and that's literally what's happened in this scene. I 100% agree with you because look, I rewatched this scene so many times. I'll tell you why. Because I was impressed. कि जो green में Anika, she's apparently the villain, but she wanted to protect Fatma from getting beaten up. Same. The Puppo also hates Fatma, but she wanted to protect Fatma. This guy completely lost it that he got slapped. And Mutahir was like, I'm the guy, I need to figure this out. But Mutahir disbalanced होके गिर गया. Look at you. वो Puppo को देखो, Mutahir को पकड़ रही है. Mutahir कुछ करने ही नहीं देती उनकी अम्मा. I feel like अनीका के जो original like normal इंसान के instincts हैं वो इस चीज में निकल के आए हैं. Like she doesn't care whether Fatima is her nemesis in this whole thing. She just knows that ये जो है ये जलालत हो रही है and उनको इस वक्त protect करना है and she's going to punch Umair if she wants to. तो अच्छा हुआ कि मुताहिर वक्त पर. तो अनीका अपनी villainous activities कर रही है. ये अनीका की सर की म्यूजिक है. And then uske baad is this whole scene where everyone is sort of mad at her, which I don't really understand why, because he was talking bad about her character in front of everyone and she was right to slap him because he was talking rubbish. If roles were reversed, if a girl said something awful to a guy wouldn't be like, you just assassinated my character, let me slap you. Because if he did slap, he would be abusive because you cannot hit a woman. At the same time, I think the same rule should apply to women. Like while he did really गलीज बात कही आपके बारे में, you don't get to just slap because having a right to someone's body and space, आपको physical होने की कोई जरूरत नहीं. I don't agree with the double standards यहाँ पे कि अगर लड़का मारे तो बहुत बुरी बात है मगर लड़की ने मारा तो ये बिल्कुल सही बात कही है, because people also take advantage of that and abuse that situation. I suppose so, but I feel like this is a gray area because it's like आप एक इंसान के हदों को उससे इतना मत खेलिए कि they completely forget themselves and their principles. She's just so calm and composed most of the time. Like people abuse her and people take advantage of her all the time, and she's fine with that. But this is like one instance where she was like, you know what, there is a limit to everything that I can bear. तो फातिमा की बेसिकली किसी और से रिश्ता तय हो गया because Umair didn't want to get married to her, and then Umair का बदला is because he hates Fatima after that charta. He's like kidnap करा देते हैं फातिमा को. ये लोग फेस मास्क ऐसे पहने जैसे कि it hides their identity. सी कोविड टाइम पे फिल्मिंग हुई थी. I also feel like COVID. they're like चलो यार यही चलेगा, तुम लोग बाकी लोग मास्क उतार दो, इन लोगों को हम लोग क्रिमिनल दिखाएंगे कोविड के लिए जो मास्क पहने हुए. How did you hide their identity? You can see it. They didn't even put the पूरा मास्क जो शक्ल कवर करता है. Like oh my god, this is so stupid. Also, it's so funny. Like the most logical thing Umair could think of was मुझे चाटा मारा, मैं इसको किडनैप करा दूंगा. उसके बाद से जब वो किडनैप हो जाती हैं फातिमा, शी इज सो स्ट्रांग कि वो किडनैपर्स की पिटाई करके वो भाग के घर आती है एंड घर पे उनके लिए एक रिश्ता वेट कर रहा है because लोगों ने कहा था इस टाइम तक आ जाना, तुम्हारे लिए कोई एक हुसैन तुमसे शादी करने आ रहा है. एंड देन दे सी हुसैन, जब तक वो घर पे पिट पिटा के आती हैं, हुसैन लाइक हम जा रहे हैं, इसका मतलब उसको मुझसे शादी नहीं करनी है. उनके ईगो हर्ट हो जाता है, वो चले जाते हैं. और फिर वो आती हैं तो सब उन कहते हैं
फातिमा को शादी नहीं करनी थी हुसैन से, उसको उमैर से शादी करनी, इसलिए वो नहीं आई। What if she was in what if she was stuck in traffic and not kidnapped? मतलब Nobody क्या believed मतलब her. आप Somebody got kidnapped in her house और पिट पिटा के आगे दे लगा, was kidnapped, like तुम्हें इससे शादी नहीं करनी थी ना, इसलिए तुम can you बहाना बना imagine रही the हो। trauma? No wonder she went crazy. Like पागल हरकतें कर रही थी। वैसे अच्छा ही हुआ वो हसान ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया। आग लगाती उनके घर में। उमर, ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? This whole show basically जो ये उमैर है ये सठियाग है। He says that he wants to marry her, which I actually want to go to episode 16 for that. So this is him. He is trying to उनको वो मनाने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह मान जाए और इन्होंने जो जलील हरकतें की हैं वो उसको भूल के इनसे शादी कर लें। बस एक माफी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताए तुमको तो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाए तुमको। Pause. तो बेसिकली अभी तक के ये हुआ है कि ये चिल्लर डेकोरेशंस और ये सड़ा सा कार्ड देखकर ये मान जाती हैं और ये शादी के लिए हाँ कर देती हैं, एंड देन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग ही डिसअपीयर्स एंड देन ही कॉल्स हर एंड ही सेज कि मैं तो तुमसे बदला ले रहा था, आई एम फोर्थ ग्रेडर। चल यार, खाना आ गया, खाना लग गया। तू जा, मैं आ रहा हूँ। तेरे ना होने वाली भाभी की आखिरी फोन कॉल सुन। I think it's so funny that Umair is friends with Gundas and they only show up with this इस टाइम के लिए वो आते हैं and he's like मैं तुम्हारी ना होने वाली भाभी से बात करने वाला, and like he's just living with Gundas. It is such a strange thing happening. एंड ही गोस लाइक मैं तुम्हारी ना होने वाली भाभी से आखिरी बार बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक somebody is going to die. You going to go back to that same house भाई, क्या है? I know. हाँ कहो। हम मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन तुम प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। हाय हाय हाय, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे। इसी तरह मैं तुम्हें रोता देखना चाहता था। Fatima, the father has a heart attack and she's very pissed at him. And I also feel like that was like a turning point for the two brothers' relationship. You know, her father Yeah, I and the guy noticed who's that. always insulting him. I know. I felt like उसके बाद उन्होंने उनका पूरा character जो है वो rewrite कर दिया, which I liked. That is how a brother's relationship should be. हेलो, हेलो मुताहिर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरी बात कराओ। हेलो, अम्मी से नहीं बात करनी उसे, तुम्हें हाँ, फोन अनिका किया बेटा है। कैसी हो? मुझे भाभी ने बताया था तुम घर पर नहीं। She hung up on her. Good. Let's see what she says. अरे शायद फोन कट गया Hello? शील से। मुझे लगता है फोन कट गया है, दोबारा मिलाऊं? oh my god, I hate her. इसका मतलब ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं because that is what her character is. हेलो मुताहिर, बेटा मैं तुम्हारी फुफ्फो बात कर रही हूँ। Hang चीजें up, पसंद आई मेरी hang बेटी up, को? hang up. Hang up. हेलो? Nice. बेटा मुझे लगता है सिग्नल नहीं आ रहे। Oh. The justifications दूसरा होता तो वो मेरे ही नाम पे बार-बार काट कर। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, बाद में करना काम। ये पकड़ो। थैंक यू। कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। खुद अपने सोफे से मत उठना तुम। बैठे अम्मा रहो को बेटा, ऑर्डर लगाना। सब कुछ मैं अभी करती अम्मा को हूँ। ऑर्डर लगाओ, उसके बाद बीवी आएंगे उनको ऑर्डर लगा देना। बच्चों को ऑर्डर लगा देना उसके बाद। तुम खुद बैठे कभी रहना। मत पेंदा बढ़ाते रहना ऐसी सोफे पे। Just I mean, I don't pain that nonsense. so long. Like she can't even call her husband without talking to his mother. Future husband. That's so annoying. That's so annoying. मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मुताहिर प्लीज फूफो को मत बताना कि मैं बाहर हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम प्लीज बाहर आओ। वरना वो यहाँ भी आ मैं जाएंगे। आता हूँ। सही में। मुताहिर, अरे बेटा कैसा लगा? आ गई? बेटा इस वक्त कहाँ जा रही हो? अल्लाह! वो Look at his face. Look I at want his to slap हंसी. him. I want to slap him so hard. Like ये अपने चेहरे से ये हंसी हटाओ। आखिर बात क्या है अनिका? मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये इतने shocked हैं जैसे कि इनको जो पहले डांटा था पहले एपिसोड में। She hates him. It's so obvious. Why is he shocked? अनिका मैं कुछ समझा नहीं। तुम बेवकूफ हो। तुम आखिर क्या कहना चाह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम कैसे कह सकती हो? ये सब कह के ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। This is what I feel right now. What Me she's too. saying. मेरा और भी वैसे टाइम भी- वेस्ट कर। जाओ। अब जाओ। ये
ये देखिए ना, इनका दिल क्यों टूटा है? What he wasn't like, he didn't like her, he knew she didn't like him. It was just a marriage of convenience. ये लड़की घर में रह जाएगी, उनकी अम्मा ने तय किया था. It's been 2 days. 2 दिन में इनको इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया है कि इनके उनको मुंह से हंसी नहीं उतर रही the है. idea of having a wifey, having someone to play with, उनको अच्छा लग रहा था आइडिया. Somebody to do work for his mother. सुबह हो गई। मैं चला पड़ा हूँ, मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं फिटबिट पे. जाओ आप पजामा शलवार बदल के आओ, पसीना आत्मा निकला होगा उसमें, रात भर जो चले हो. ओके, इसके बाद अब फातिमा के अब्बा डाइज एंड देन अपने डेथ बेड पे ही लाइक, मुताहिर तुम फातिमा से शादी कर लो. एंड देन उमैर लाइक, मुताहिर नहीं कर सकता, वो मेरी आइसक्रीम है, मुझे फातिमा चाहिए. मेरी आइसक्रीम नहीं ले सकता. तो उमैर पागल हो गए. फिर उनको दोबारा फातिमा चाहिए. ये मेरा टॉय है, मुझे ये टॉय चाहिए, ये मेरे घर में था. आइसक्रीम चाहिए. उमैर जब देखो फातिमा के कमरे में घुस ही आते हैं, ठीक है, जब भी कुछ करना है. I swear to God, बिना like, knock क्या किए. है वो ये बदतमीजी. सीन है. उमैर लाइक फातिमा के कमरे में घुस के बिना नॉक करके आके रोने लगते हैं. फातिमा की मेमोरीज She याद never, करके. like, she's never told him please knock and come inside. वो इतना नहीं. मतलब इनका faith इतना strong दिखाया गया है, but there is a नामहरम who is entering your room without All the knocking time. the door. All the time you're praying and he's just coming and sitting on your couch and he's staring at you praying. फातिमा जरा मेरे लिए भी दुआ कर देना, फातिमा जरा मेरे लिए भी एक गिलास पानी ले आना. ऐसे ऑर्डर वो उनको इशू करते हैं. वो उन्होंने एक बार उनको नहीं बोला है कि what the hell is your problem? You are उसी वक्त उन्हें क्या चाहिए nobody. था? उमैर मैं दुआ कर रही हूँ कि तुम मेरे कमरे के बाहर चले जाओ. अल्लाह उमैर को बाउंड्री सिखाइए, मेरी बाउंड्री रिस्पेक्ट करें. आमीन. Like he is Oh actually God. so hurt by Fatma's rejection. It's impossible And because he he's is- so twisted. He is genuinely confused कि ये मुझे क्यों रिस्पेक्ट कर रही है, मैंने तो सिर्फ प्यार किया इनसे. हाँ, ये क्यों मुझसे नाराज है? ये है कोई तुम्हारी इस जुल्म नहीं मोहब्बत किया. का जवाब। अरे It's like somebody told him कि रोने का इमोजी बनाओ. He made this. Like, it's so obvious that he only wants to get married to her because she's something now he that he can. cannot have. okay, so at this हाँ, point, so he's very exactly. depressed because Fatma is going to get married. And look at him. The first thing he does is guitar ले आते हैं. Look at this, like look at the music and look at the way. क्या बजा रहे हो? क्या music चल रही है background में? Like what's wrong with them? गिटार के बड़े शौकीन नहीं है. He's just holding it and crying. वो उनका कंफर्ट है. उनकी लोग तकिया पकड़ के रोते हैं, टेडी बेयर पकड़ के रोते बेटा। हैं. ये अपना गिटार पकड़ के रोते हैं. इन्होंने एक्चुअल not गिटार म्यूजिक playing इस बार it. बैकग्राउंड में लगाई. He's just holding it. He found this earring on the table and his first instinct was to think ये इयरिंग पड़ी है टेबल पे तो ये फातिमा की ही होगी. फिर वो फैंटेसी लैंड में चले गए, मेरी प्यारी फातिमा. तब पूरा पर्व सीन चल रहा है कि वो इयरिंग उठा के देने. we're supposed to like romanticize with this कि हाय क्या सीन है, किसी की गंदी गंक लगी हुई इयरिंग उठा के मैं सुन रहा हूँ. They always forget about the gunk when they're trying to romanticize this. It smells really bad. Pick up that झुमका and smell it. फिर देखते हैं आपको प्यार आता है या आप दोबारा किडनैप करेंगे. फातिमा की कान से जितनी बदबू आती है उसको तो मैं किडनैप फिर से कराऊंगा. This is how you will prove your true love. If you still love her after that gunk smell, then you love her. ये उमैर का बेडरूम देखें, अपनी ओन तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने पीछे. Narcissist. Honestly, what is this room? कोई अपनी तस्वीर ला के बिस्तर के ऊपर बैठा रहता है. वो भी इतनी खौफनाक सीरियस तस्वीर, इंसान उठे तो डर जाए. फातिमा की शादी हो रही है. दूसरों को तो तो जीने ये दो। देखे पड़े हैं, रोए पड़े हैं, ठीक है. वहाँ से प्रॉब्लम क्या है? हाँ Then ये अपनी मम्मी को फोन करते हैं. ये सीन कहाँ हो बेटा? यहाँ सब मेहमान आ गए। प्लीज आप घर आ जाए. अभी घर आ जाए प्लीज. बेटा तुम
क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकती हो बेटा? मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा के मेज पे रख कर आई हूँ वहाँ। बस अभी You know what's funny is nobody understands कि क्यों रो रहा है, because everyone's like, dude, you literally got her kidnapped. You really hate her. So nobody is making the connection that he's in love with Fatima. I just feel like he is so audibly sobbing and she's like, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करवाए थे और तुम अभी तक के तैयार हो कि नहीं है, एकदम But मैं कह क्लियरली रही हूँ, सुनाई that's why दे they रहा है कि वो can't भौ make the करके रो रहे connection. हैं। They can't make the लेकिन वो connection. किस चीज के लिए रो रहे हैं? इतने कुछ लापरवाह हादसा कैसे हो हो गया, सकते हो? पैर टूट गया है, सर फूट गया है, क्या हुआ है? Look at him, he's just sobbing. मैं भी कह रहा हूँ ना, Now बस she सब छूट realized. गया है, मैं मर जाऊंगा वरना। कहाँ मर जाओगे? तुम रो रहे हो बेटा? I love her scene after. पहुंच गई घर. फातिमा से शादी करूंगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब मैंने तुम्हारी मंगनी करना चाहिए फातिमा से तो तुमने साफ इनकार कर दिया और खुद ही आके तुमने मुझसे कहा कि मामा मुझे फातिमा से शादी करनी है और फिर आखिर वक्त पे तुम गायब हो गए क्योंकि तुम्हें बदला लेना था। और अब जबकि फातिमा की शादी मुताहिर से हो रही He's just है, listening like a तो surly तुम्हें अचानक teenager. उससे मोहब्बत हो गई है। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये शादी रोक दूं? बेटा आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मुझे तो लग रहा है कोई नफ्सियाती मसला है तुम्हारा। पूरी समरी ऑफ द शो इन मम्मी ने डायलॉग में कह दी. इनका जो रिएक्शन है, that is every viewer's reaction in this episode. They're like, what is this guy's problem? तो अब बात तो करके देखें, आपकी बात को कोई नहीं He has टालेगा। heard literally मैं तुम्हारी nothing. तरह He खुदगर्ज is और बेइज्जत single-mindedly नहीं हूँ। just focused on this one thing. फातिमा एक इंसान है, मैं उसकी खुशियों से नहीं खेल सकती। सही बात है. या मैं तुम्हारे एहसासात की फिक्र करूं या उसकी जिंदगी की। You know what's funny is ये इनको आई डांटी जब ये रो रहे थे, right? At his weakest. फिर एंड में ये विलन बन जाते हैं. Next episode. उमर, ये villain ही है. See, the thing is, whenever he's crying, they put sad music. कि feel sad for him. लेकिन जब ये villain होते हैं, they put villain music. So he is not a hero. Don't put sad music when he's crying. Put villain music उस time पे भी. And she keeps saying, मुझे शर्म आती है that I am your mother. But then she keeps forgetting that she said that. I loved how she reacted when she found out that he got Fatma kidnapped, and he kept saying, "अम्मी आप बिना वजह overreact कर रही हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना उसको?" I just love how you were genuinely confused कि ये इतना overreact इसमें क्यों कर I रही है? think सिर्फ ये kidnap ही तो psychopath करना है. To conclude, Anika said no to Mutahir. Mutahir और फातिमा की शादी हो गई. Umair is in love with Fatima again, and it started with Umair and Fatima drama, and then it ends with Mutahir and Anika ending, so Fatima could just end up marrying Mutahir. Now you think कि अब happily ever after होना चाहिए because दो lallus got married to each other, Mutahir and Fatima, two doormats got married to each other to make one big doormat. Welcome, welcome. जितना चलना है हमारे ऊपर चलिए, अब दो हम यूनिट्स सामने एक साथ आ गए हैं. I don't know if the show is badly written or if the actors are bad or if the director is bad. Everything is bad, I think. I think we should save our reviews for part 3 because there's still so much left to do. So just for now, let's take a break और अगले एपिसोड में मिलते हैं. तो देखते हैं ये होलसम फैमिली के साथ और क्या हो रहा है. Bye.